Now let us see the students of 12th standard. Next theory topic of this chapter 6, most important. State and explain about the Lenz's law and conservation of energy. Before this we have studied about the Faraday's law of electromagnetic induction. This Faraday's law of electromagnetic induction gives the magnitude of induced EMF, and it is equal to what? The time rate of change of magnetic flux linked with a closed circuit. While the Lenz's law gives the direction of induced EMF and hence the direction of induced current in a closed coil. As the coil is closed, you can see the current either will be in clockwise direction or it will be in anti-clockwise direction. Out of these two, any one possible direction is there, no any other third direction. And as you know, if you take a one battery connected with a one resistive wire, then always from its positive terminal the current will flow and come to the negative terminal. If you interchange the polarity, then the current will be in opposite direction. So accordingly here, if the current will be in one direction in a coil, if you break a coil at any one point, then one end work as positive terminal, another end work as negative terminal. The point from which the current starts to come out will work as positive, and the point at which the current is ending is working as negative terminal. So these are what? Positive and negative terminal of voltage generated, of EMF generated, and that is called what? The polarity of induced EMF. And accordingly here the current will be either in clockwise or it will be in anti-clockwise direction. So how is it possible? That we have to see. So as given here, in 1934 a German physicist Lenz deduced one rule, and it is known as the Lenz's law, which gives us the polarity, that is the direction of induced EMF. Here a one coil having only one turn is connected with galvanometer. The coil is just like as a cooker ring, इस तरह की है. आप suppose कर लीजिए in vertical position like this on cooker ring जैसी, और इसके two end के साथ galvanometer is connected, and exactly in the front side of it like this a magnet is kept. ये magnet का north pole, ये magnet का south pole. The coil is held like this one, and as you know, when the magnet is coming towards the coil with its north pole, then we have seen that as the magnet comes closer and closer, the value of magnetic field goes on increasing. So magnetic flux linked with this coil also increases. In short, the magnetic flux linked with this coil changes, and due to change of magnetic flux inside the coil, the current will be generated. And as the current will be generated in this coil, so that current looking from this side, यानी कि यहाँ से अगर आप देख रहे हैं बराबर, तो ध्यान से इस साइड से अगर आप देख रहे हैं कॉइल पर इस तरह की है, तो अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है तो कौन सी डायरेक्शन होगी? इट इज क्लॉकवाइज. करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है तो कौन सी डायरेक्शन होगी? एंटी क्लॉकवाइज, लुकिंग फ्रॉम द साइड ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल. तो अब यहाँ पे एक कॉइल में दो में से एक डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हम यहाँ पे मैथमेटिक्स में जिस तरह से कोई दो ही ऑप्शन होता है, एक राइट और दूसरा रॉन्ग, तो मैथमेटिक्स में पहले रॉन्ग है वो सपोज कर लेते कि सही है, एंड फिर इसको प्रूव करते हैं कि नहीं ये रॉन्ग ही है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा ऑप्शन राइट हो जाता है. सेम में हम यहाँ पे when the magnet is moving with its north pole towards the coil, and because of change in magnetic flux inside the coil the current is generated, we are supposing at this time that the current is generating in its clockwise direction. And clockwise direction मतलब क्या? South pole. You have studied in the earlier chapter. Anti-clockwise direction मतलब कौन सा? North pole. So this face of the coil towards the magnet, ये face of the coil towards the magnet,
will work as a south pole if we assume the current is in clockwise direction. फिर हमको प्रूव करना है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो ही नहीं सकता, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, मतलब वो वर्क एज अ नॉर्थ पोल. देन इसके ऊपर से आएगा डेफिनेशन और स्टेटमेंट ऑफ लेंज़ लॉ. तो एज द मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द कॉइल, द करंट इज सपोज्ड टू बी जनरेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इस तरह से जनरेटेड है तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर का डिफ्लेक्शन फ्रॉम 0 टू कौन सी साइड आएगा, लेफ्ट साइड, 0 टू लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन. और अगर ये अपना सपोजिशन सही है तो क्या हो सकता है, और फिर इसको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो क्यों रॉन्ग हो सकता है, दैट वी प्रूव इट. तो देख लीजिए यहाँ पर. तो सपोज ए बार मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स ए कॉइल with its north pole pointing towards the coil. So magnetic flux linked with the coil goes on increasing, and hence the EMF is induced in the coil, and as a result the current is also be induced in it, and this kind of the current produced in a coil generate a magnetic field, and due to generate a magnetic field, this coil behaves as a magnet with its one face behaves as north pole, another face behaves as south pole, which produces a magnetic field. So the coil acts like a magnet, but right now we don't know the direction of current in the coil, and this direction of the current in the coil may be clockwise or anti-clockwise. And now we are suppose that the current in the coil is in clockwise direction, as I earlier discussed. अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, while looking towards the coil normally from the same side of the bar magnet, then this side of the coil facing the magnet will act as a south pole. अगर ये अपना assumption right है, if this assumption is true, तो क्या होगा, तो ये साउथ पोल सामने से आने वाला मैग्नेट का नॉर्थ पोल, दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ये मैग्नेट को आपको स्लाइटली पुश करना पड़ेगा, कोई ज्यादा नहीं. कॉइल इस तरह से स्लाइड पुश किया, जैसे स्लाइड पुश किया इसमें करंट जनरेट हुआ, करंट जनरेट होने की वजह से ये इसका फेस साउथ पोल की तरफ वर्क करता है. तो बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये मैग्नेट विच विल बी मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल विथ ग्रेटर एंड ग्रेटर स्पीड. तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. स्पीड बढ़ेगी तो इसी के साथ यहाँ का पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा एंड ज्यादा डिफ्लेक्शन बताता जाएगा. मीन्स व्हाट, इनसाइड द कॉइल मोर एंड मोर करंट जनरेटेड, मोर एंड मोर करंट जनरेटेड मीन्स व्हाट, this kind of the coil go on becoming more and more stronger with its south pole and with its north pole. तो इसका ये फ्रंट फेस साउथ पोल की तरफ, यानी कि इसका साउथ पोल मोर स्ट्रांगली साउथ पोल की तरफ वर्क करेगा. एंड एज इट वर्क्स एज अ मोर स्ट्रांग पोल ऑफ साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट को मोर स्ट्रांगली खींचेगा, मोर स्ट्रांगली खींचेगा, तो ये मैग्नेट की स्पीड और बढ़ती जाएगी. इट मीन्स व्हाट, ये मैग्नेट का एक्सेलरेटेड मोशन जब तक कॉइल के नजदीक में नहीं आएगा तब तक कंटिन्यू रहेगा. एंड एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ये मतलब क्या, स्पीड ऑफ मोशन अंटिल इट कम वेरी क्लोज टू द कॉइल गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंड स्पीड बढ़ती जाएगी तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा. मीन्स व्हाट, अगर अब इस सिचुएशन में विद दिस कॉइल के साथ कोई एक छोटा सा इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया या तो एक छोटा सा रेजिस्टिव वायर लगा दिया, तो क्या होगा, अक्रॉस टू एंड्स ऑफ ए रेजिस्टिव वायर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन I2RT, आई की वैल्यू बढ़ती है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती जाएगी, वो बढ़ती ही जाएगी. अगर छोटा सा इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया तो इलेक्ट्रिक बल्ब की ब्राइटनेस कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी. इट मीन्स व्हाट, आइदर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टिव वायर कनेक्टेड इन सीरीज विद द कॉइल गोज ऑन इंक्रीजिंग, or you can say the brightness of the electric bulb goes on increasing, but this is without doing any mechanical work on this bar magnet. तुमने ये बार मैग्नेट को पुश करने के लिए कहीं किसी भी प्रकार का कोई वर्क नहीं किया है, कोई एनर्जी ये बार मैग्नेट को पुश करने में स्पेंड नहीं की है. तो ये तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गलत हो गया.
because law of conservation of energy says on one side if you are spending some kind of energy, then on the another side you will get another kind of energy. So according to law of conservation of energy, this is not consistent. Yani this is wrong. So either you say law of conservation of energy is wrong, or you can say our supposition is wrong, but we can't say law of conservation of energy is wrong. That's why we must have to accept that our supposition is wrong. कौन सा अपना supposition था, कौन सा अपना assumption था? When the bar magnet with its north pole facing towards the coil is moving, then at that time, due to the change of magnetic flux in the coil facing towards the magnet, the current was generating in clockwise direction is wrong. तो clockwise नहीं तो दूसरा कौन सा रास्ता बचा? That must be anti-clockwise. And anti-clockwise, that's why this face of the coil remaining in front of the north pole of a bar magnet must be behaving as a north pole. अगर ये north pole के साथ मूव कर रहा है तो ये north pole की तरह वर्क करेगा, south pole की तरह नहीं. अगर ये सही है तो फिर क्या होगा वो बाद में देखते हैं. तो if this assumption is true, then only by slightly pushing the magnet, its north pole will be attracted by the south pole of the coil. तो north pole is south pole of the coil से attract होगा, and hence its speed will increase. Magnet की speed बढ़ती जाएगी. As a result of this, the rate of change of magnetic flux will increase. इन दोनों के बीच का change of magnetic flux का rate बढ़ेगा. So value of induced current, ये coil में generate होने वाला induced current in the coil will also increases. This increase of current will make south pole of the coil more stronger. तो इसमें करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो ये साउथ पोल और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. साउथ पोल ऑफ द कॉइल मोर स्ट्रॉन्गर विच अट्रैक्ट्स नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट मोर स्ट्रांगली. तो नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट को और ज्यादा और जोर से खींचेगा. हेंस मैग्नेट विल बी एक्सेलरेटेड मोर एंड मोर टुवर्ड्स द कॉइल. इसीलिए मैग्नेट का एक्सेलरेटेड मोशन ज्यादा एंड ज्यादा कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा. यानी कि स्पीड ऑफ बार मैग्नेट कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी. एंड स्पीड बढ़ती जाएगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा, तो करंट जनरेट होता जाएगा, ज्यादा एंड ज्यादा करंट. एंड दस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट गोज ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली. इसीलिए कॉइल में करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी. एंड दैट कैन बी सीन फ्रॉम द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ गैलोमीटर. तो पॉइंट ऑफ गैलोमीटर गो ऑन शोइंग मोर एंड मोर डिफ्लेक्शन. अगर इस सिचुएशन में if an external resistance R or a small electric bulb is connected in series with the coil, ये coil के साथ कोई एक छोटा सा external resistance सीरीज में लगा दो या तो इसके साथ एक छोटा सा इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दो, तो क्या होगा? Then the joule heat according to equation I square RT produces in it. तो resistive wire में joule heat produce होगी. या तो फिर वो जो बल्ब है उसकी brightness और brightness of the bulb goes on increasing. तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे आगे कि ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इंक्रीज होती जाएगी या तो वैल्यू ऑफ करंट इन द कॉइल में बढ़ता जाएगा. क्या करने से? मैग्नेट को स्लाइटली पुश कर देने से. तो स्लाइटली पुश किया मतलब इसके ऊपर कोई मैकेनिकल वर्क डन या कोई एनर्जी तो हमने उसको सप्लाई नहीं की. तो इवन दो नो मैकेनिकल वर्क इज डन ऑन द मैग्नेट, large amount of heat energy I square RT is produced in the coil without spending any energy. तो ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कॉइल में जनरेट होती जाती है. एक साइड पे हमने कोई वर्क नहीं किया, एक साइड पे हमने कोई एनर्जी नहीं स्पेंड की, फिर भी. तो दिस इज नॉट कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ सही नहीं है. सो अवर एजम्पशन, कौन सा एजम्पशन? दैट द एंड ऑफ द कॉइल फेसिंग द बार मैग्नेट acts like a south pole becoming wrong. तो ये अपना assumption गलत है. अगर साउथ पोल नहीं तो फिर कौन सा वो बाकी बचा? नॉर्थ पोल. इट मीन्स दिस एंड ऑफ द कॉइल फेसिंग द बार मैग्नेट मस्ट बी बिहेविंग एज लाइक ए नॉर्थ पोल. अगर नॉर्थ पोल है इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए? व्हाइल लुकिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द मैग्नेट इट सीम्स टू बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन.
that is the induced current accordingly must be flow in anti-clockwise direction when viewed normally from the same side of the magnet. अगर वो नॉर्थ पोल है कॉइल का एंड सामने से मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन इट ऑपोजेस द इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। इसलिए बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल के साथ ये नॉर्थ पोल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसीलिए ये मैग्नेट इतना इजीली यहाँ पे मूव नहीं होगा। अगर मूव होगा तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता था, उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। तो दिस अपोजेस द इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। और अब अगर ये नॉर्थ पोल सही है, ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल बराबर सही है, तो क्या होगा, इफ दिस इज ट्रूली हैपनिंग, अगर ये सच में होता है, then only there will be a repulsive force between the north pole of bar magnet and induced north pole of the coil. The north pole, induced north pole of coil and the north pole of bar magnet, दोनों के बीच में क्या होगा, force of repulsion। अगर force of repulsion होगा तो ये मैग्नेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे नहीं आएगा, आपको इसको कॉइल की ओर ले जाने के लिए पीछे से पुश करना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एंड ये एक्सटर्नल फोर्स, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन को बैलेंस करने वाला मिनिमम कितना होना चाहिए। It means what? In order to maintain the motion of this magnet towards the coil, at least that much external force you have to go on applying, which can balance the repulsive force. And under the effect of that external force, while pushing the magnet, whichever the work is done, at the cost of that much work is done inside the coil, according to equation I square RT, heat energy will be generated. And this is consistent with the law of conservation of energy. क्योंकि बार मैग्नेट को पुश करने के लिए आप जितना मैकेनिकल वर्क करते हैं, जितनी आप एनर्जी स्पेंड करते हैं, इतनी एनर्जी सामने कॉइल में इसका रेजिस्टेंस होने की वजह से या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने की वजह से ये जो करंट जनरेट हुआ तो I2RT के मुताबिक का हीट एनर्जी जनरेट होता है। एंड इसके ऊपर से आता है इसका स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पे, तो इफ दिस इज ट्रूली हैपनिंग, then only there will be a repulsive force between north pole of the bar magnet and induced north pole of the coil. Hence, the mechanical work is required to be done by an external force in order to maintain the motion of the bar magnet towards the coil against this repulsive force. And at the cost of this much work, the heat energy equal to I square RTB produces inside the coil. And this is consistent with the law of conservation of energy. So, what is the statement of the Lenz's law? यानी कि polarity of induced EMF and hence induced current is produced in the coil in such a way that the magnetic field produces due to it opposes the change in magnetic flux that produces। यानी कि देखिए, ये कॉइल में induced current या polarity of induced EMF इस तरह से जनरेट होगी कि वो इंड्यूस्ड करंट की वजह से जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का ऑपोज करे, इस प्रकार से इसमें करंट जनरेट होगा। इन शॉर्ट यहाँ पे खास ध्यान रहेंगे कि नॉर्थ पोल और इसका नॉर्थ पोल अगर आमने सामने आ रहा है, तभी क्या होगा, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, तभी क्या होगा, इसका चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का ऑपोज होगा। एंड अकॉर्डिंगली द करंट इसमें किस डायरेक्शन में मिलेगी, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे सामने भी नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, अगर ये साउथ पोल रख के ले जाए तो ये भी साउथ पोल क्रिएट होगा। अगर ये इस तरह से इसको पीछे की साइड में ले जाते हैं, यानी कि द मैग्नेट इज अलाउड टू मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, अवे फ्रॉम द कॉइल, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो जैसे ही यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा तो ये इसका नॉर्थ पोल क्या करेगा, इसके साउथ पोल को, ये इसका नॉर्थ पोल बराबर, तो नॉर्थ पोल के बदले में ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली साउथ पोल हो जाएगा। एंड साउथ पोल होगा तो इसके नॉर्थ पोल को खींचेगा, खींचेगा मतलब इसका चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो फास्टली हो रहा है उसका ऑपोज करेगा, बराबर। तो बी रिमेंबर लाइक दिस वन, एंड द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस कॉइल इन सच अ वे दैट, वो करंट जनरेट होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इट ऑपोजेस द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूसेस इट। तो ये चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स का ऑपोज करने वाला ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। ओके, तो बी रिमेंबर यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दिस इज द ट्रूथ।